یہ تعجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الغضبیہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بامر اللہ بلندر صلوات۔ عزیزان محترم، انسان کی فطرت کے اعتبار سے دو عالم خلق کیے ہیں خداوند متعال نے۔ ایک عالم نور ہے کہ جو روشنی سے مثل ہے، اور ایک عالم ظلمت ہے کہ جو اندھیرے سے مثل کیا جاتا ہے، یعنی ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ نور سے منسلک ہے۔ اسی طرح جو دوسرا راستہ ہے وہ مٹی سے منسلک ہے، کہ جو کہ ہماری تعلق ہوتا ہے اس دنیا سے، دنیا کی جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جتنی بھی ہماری اس دنیا سے جتنا رابطہ ہے وہ عالم ظلمت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب انسان کی خود کی تشخیص ہے کہ وہ جب اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ کس طرف جاتا ہے، اپنا رخ کس طرف کرتا ہے، کیا وہ نیکی کی طرف جاتا ہے کہ بدی کی طرف جاتا ہے۔ ہر وہ ہمارا عمل کہ جو خدا کی رضا کے لیے ہوگا، جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، جس سے ہم ان ہستیوں کو راضی کریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر اس راہ پہ ہم چل رہے ہیں تو وہ تمام ہماری حرکتیں نیکیوں میں شمار ہو جائیں گی، حتیٰ کہ وہ چاہے آپ کی حرکت سونا ہو، بیٹھنا ہو یا کھانا پینا ہو۔ اسی طرح وہ حرکتیں کہ جس میں آپ کا توجہ دنیا ہے، جس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کسی انسان کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنے دل کو خوش کر رہا ہوں، خواہشات نفسانی ہیں، تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، چاہے وہ عبادت ہی کی ظاہری شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گی کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا کہ رستے میں رکا، کسی اندھیری جگہ پہ مسجد نظر آئی، نماز کے لیے گھس گیا۔ نماز پڑھنے جو کھڑا ہوا تو اس کو آہٹ محسوس ہوئی اپنے پیچھے سے، تو اس کی نیچرلی اس کے دل میں آیا کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے، میں اپنی عبادت بہت درست طریقے سے انجام دوں۔ بہت طولانی اس نے نماز پڑھی۔ عزیزوں، جب نماز ختم ہوئی ہے اور اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دل نے یہ ندا کی کہ یہ جتنی نماز میں پڑھ رہا تھا وہ در حقیقت اس کتے کے لیے تھی، میں نے خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ فیضان محترم، یہ نماز اس کی گمراہی کا سبب بن گئی، کیونکہ ریاکاری تھی، کسی اور کے لیے کام کیا گیا تھا۔ اب ہماری خود کی یہ توجہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس دنیا میں، اگر آپ اس مجلس میں اس لیے آئی ہیں کہ اس گھر کے صاحب ازا خوش ہو جائیں تو یہ آنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف بیوی کو راضی کرنا ہے، خداوند متعال کو راضی کرنا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کشمکش میں رہتا ہے ہر وقت، کبھی دل چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا، کچھ ہی پل میں وہی دل دوبارہ سے برائیوں میں لگ جاتا ہے، پھر کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جیسے کہ ان ایام میں ہماری زندگیاں بہت بہتر چلتی ہیں، لیکن جیسے ہی ایام ختم ہوئے یا گھر واپس گئے تو دوبارہ سے وہی ظلمتیں، وہی گانا اور سب کچھ، ان چیزوں میں اگر ہم ملوث ہو جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ عزیزان محترم، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں ہر قدم صرف اور صرف حصول قرب الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے خدا کے قرب کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم لوگ ظلمت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں استقرار موجود ہے، یہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں ایسا کر کے دکھایا کہ اگر تم چاہو تو اپنی دل میں صرف اور صرف خدا کی یاد کو قائم رکھ سکتے ہو۔ جناب فضہ کہ جو جناب فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، سب ان کا نام جانتے ہیں۔ جناب فضہ کے بارے میں مشہور ہے
कि 20 साल उन्होंने जो कलाम किया है सिर्फ और सिर्फ कुरान से किया है। किताबें मौजूद है, आप जाएं खंगाले कि किस तरह 20 साल वो किस तरह के जवाब देती थी। मुख्तलिफ सवाल किए गए, आपकी औलाद कहाँ है, आप सफर पे क्यों निकली हैं, और हर सवाल का जवाब कुरान से दिया जाता था। आज मिसालें मौजूद हैं। जनाब फिजा आप कहेंगे वो तो जनाब फातिमा ज़हरा की कनीज थी, उस घर में रही थी, लेकिन आज आपके सामने ये जो हाफिज कुल्ले कुरान बच्चियां हैं, इनको आप सब देख रहे हैं। अगर ये बच्चियां वाकई एक लम्हा ऐसा आएगा कि अगर इनसे भी सब सवाल किए जाएं तो ये अपना लेवल उस लेवल तक बना सकती हैं कि हर जवाब कुरान से दिया जाए। यानी इंसान जो है वो अपने आप को इस तरह मोल्ड कर सकता है। उसूल काफी में एक रिवायत है कि एक सहाबी रसूल का कहीं से गुजर हुआ और दूसरे सहाबी रसूल बैठे हुए रो रहे थे। तो उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? कहते हैं कि मैं जब रसूल अल्लाह के पास होता हूँ, मजलिस में होता हूँ रसूल अल्लाह की, तो ऐसे महसूस होता है जैसे मैं बहिश्त में हूँ। मेरा दिल यह कहता है कि मैं सारे वो अमाल करूंगा, सब बुरे अमाल को छोड़ दूंगा, लेकिन जहां मैं उस मजलिस से बाहर निकलता हूँ तो मैं इस दुनिया की तरफ मुनक़लिब हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं मुनाफिक हूँ। वो शख्स जो सुन रहा था वो कहता है कि ये चीज तो मेरे साथ भी है। रसूल अल्लाह से चल के पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर हमारी यही हालत रही तो क्या हमें हिदायत मिल सकती है या हम तब भी गुमराही में रहेंगे? बस ये पूछने के लिए रसूल के पास गए हैं। रसूल अल्लाह ने उनका ये मर्ज सुना और रसूल कहते हैं कि अगर वही हालत कि जो मस्जिद में मेरे साथ तुम्हारी होती है जब तुम मेरे पास होते हो, यही हालत अगर तुम्हारी जिंदगी भर कायम रहेगी कि तुम हर वक्त खुद को महज़र खुदा में चाहोगे, अगर तुम्हें खुद पता चलेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है और हर वक्त तुम इसी हालत में रहोगे, बईद नहीं है कि खुद फरिश्ते आकर तुम्हारा हाथ चूमेंगे, खुद फरिश्ते आकर तुम्हारे हाथ को बोसा देंगे। अजीजाने मोहतरम, कोई आसान काम, बहुत आसान काम है ये। बस सिर्फ और सिर्फ हम बचपन में जब छोटा बच्चा पैदा होता है अपने बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? अल्लाह एक है, अल्लाह का बताते हैं, फिर उसको ये भी बताते हैं कि अल्लाह हर जगह से देख रहा है, बेटा देखो कुछ नहीं करना। लेकिन क्या हमें ये इदराक होता है कि अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है? जब हम लोग मोबाइलों पे चीजें देख रहे होते हैं तो हमें इदराक होता है कि अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है? हमें नहीं यकीन होता। अगर हमें यकीन होता तो हम अपनी जिंदगियों में एक गुनाह भी ना करते। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने यहाँ पर भी बता दिया कि अगर तुम्हारी हालत वो रहेगी तो तुम दर हकीकत हिदायत याफ्ता हो, लेकिन अगर तुम कभी उस तरफ पलट जाओगे, कभी उस तरफ पलट जाओगे तो तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। अकली अगर एक सीधा रास्ता हो कि आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन आप बार बार कभी इस पे छलांग मारे, उस पे छलांग मारे, फिर क्या आप आगे तक पहुंच पाएंगे? नहीं। आप कभी इधर होंगे उधर होंगे, आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जाने मोहतरम, हमें शब रोज अपने खुदा की याद को अपने दिल में रखना है। और जिस खातून, कोई ऐसी हजार खातूनें यहाँ ऐसी बैठी होंगी कि वाकई जो हर वक्त अपने खुदा को याद करती होंगी, हर वक्त इमाम को याद रखती होंगी, वो खुदा का शुक्र अदा करें। और मैं बच्चियों से कहना चाहूंगी, जवान बच्चियों से, छोटी बच्चियों से, कि आप लोगों के दिल नूरानी है, अपने इन आदात को अपनाएं। अगर इब्तदा से इन आदात को अपना लिया तो यकीन जानिए ये पुख्ता हो जाएंगी। लेकिन अगर बुजुर्ग हैं तो वो नामायूस ना हो, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। खुदा इस चीज को आसान कर देता है। बाकायदा मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को। हमारे ही खानदान के एक बुजुर्ग थे, तकरीबन उनकी 103 साल उनकी उम्र थी, कुरान नहीं पढ़ा हुआ था। उनके जमाने में उनके वालिदैन ने नहीं पढ़ाया। यकीन जानिए वो अपने पोते पड़ पोते के साथ बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ा है उस उम्र में। जब इंसान कहता है कि हम तो ज़ईफ हो चुके हैं, अब क्या हम करेंगे, लेकिन नहीं जाने मोहतरम, उम्र की कोई कैद नहीं है। बस ये वो खूबियों का एक मुकदमा बयान किया था कि जिसको हमें अपनी जिंदगियों में लेकर आना है। अब ये जो इस्तराबी कैफियत का मैंने जिक्र किया कि हमारे कल्ब में हमेशा एक इस्तराबी कैफियत रहती है क्योंकि शैतान हमारे साथ साथ लगा पड़ा है, ये इस्तराबी कैफियत अंबियाओं में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नूरानी जहद है, वो नूरानी जिस्म रखते हैं। खुदावंद मुतआल ने इनको मकाम इस्मत अता किया है। हमारा अकीदा है कि मासूमीन और अहले बैत अतहार ये तमाम मासूम है, ये गुनाह की तरफ माइल नहीं होते हैं। यहाँ तक कि खुदावंद मुतआल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सूरह नज्म आयत नंबर 4 में खुदा फरमाता है कि वो अपने ख्वाहिश से नहीं बोलता। कौन? रसूल के लिए फरमा रहे हैं कि रसूल जो कुछ करता है, जो बोलता है, मेरी ख्वाहिश से बोलता है, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। अब हम जितनी मजलिसें आज सुन चुके हैं उसमें बारहा मुसलसल ये सुना कि फातिमा ज़हरा की कैसे तौसीफ बयान की है रसूल ने। फातिमा ज़हरा को कैसे हर अमल से, हर कौल से बताया कि फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे से है। और जिस कदर रसूल अल्लाह ने इत्तमाम किया है जनाब फातिमा ज़हरा का, इससे पता चलता है कि ये रिश्ता कोई बेटी और बाप का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये जितने भी अकवाल थे ये सिर्फ रज़ाए परवरदिगार से थे। रसूल अल्लाह ने हमें अपनी जिंदगी में करके दिखाया कि उनके हाथों का बोसा लेते थे। रसूल अल्लाह जब सफर पे जाते थे तो उनको खुदा हाफिज करके जाते थे। वापसी पे जब आते थे सबसे पहले फातिमा के घर जाते थे। और जब तक बगैर इजाजत के सैयदा के घर में दाखिल नहीं होते थे। और रसूल फरमाते हैं ये वो घराना है कि जिनकी मवद्दत खुदा ने वाजिब करार दी है। मवद्दत अज़ीज़ान मोहतरम, मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क होता है। हम अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। अगर फर्ज करें वो इस दुनिया से चले जाएं या बाहर जाके तालीम हासिल करें तो हम जिंदा रहते हैं ना, ये मोहब्बत कहलाती है कि उसके बगैर इंसान जिंदा रह लेता है। लेकिन मवद्दत उसको कहते हैं जो मछली को अपने पानी से होती है। अगर आप मछली को पानी से जुदा कर दें तो मछली जिंदा नहीं बचती है। इसे कहते हैं मवद्दत, यानी हमने इनसे ऐसे मवद्दत करनी है कि इनके जिक्र के बगैर हम जिंदा भी ना रह पाए। और इसी मवद्दत को बताया गया है और यही बताया रसूल ने कि ये मवद्दत वाजिब है। और साथ ही रसूल फरमाते हैं कि फातिमा मेरे दिल की जान है, अली मेरी आंखों का नूर है, हसन और हुसैन मेरे दिल के मेवे हैं। और इनकी जो औलाद है, जो नस्ल हुसैन में से बाकी आयमा है, वो वही इलाही है। और ये सब के सब मिलके हब्लुल्लाह है, यानी अल्लाह की रस्सी। इस वक्त अगर हम कुरान की तरफ जाएं तो कुरान में सूरह आले इमरान 103 में बयान होता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुतफर्रिक ना हो। तो ये अल्लाह की रस्सी कौन है? यही अहले बैत है कि जिनको कहा गया है कि पकड़ के रखो। जिसने इनको छोड़ दिया वो समझो गर्क हो गया इस दुनिया में। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सलमान से फरमाते हैं कि ए सलमान, जो शख्स मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है उसकी ये मोहब्बत, उसकी मवद्दत 100 मकामात पे उसके काम आएगी। कुछ मकामात दुनिया में है और कुछ मकामात आखिरत में है। जैसे कब्र में मौत में काम आएगा, कब्र में काम आएगी, मीजान, सिरात, हिसाब किताब और बहुत से मराहिल है जिसमें मोहब्बत फातिमा काम आएगी। लेकिन साथ ही फरमाया कि ए सलमान, ये याद रखो कि फातिमा जिससे राजी उससे मैं राजी और उससे अल्लाह भी राजी है। लेकिन फातिमा जिससे नाराज है उससे मैं भी नाराज हूँ और उससे अल्लाह भी नाराज है। वैल हो उन शख्सियत पर कि जो मेरी बेटी पे जुल्म करेंगे, कि जो उनके शौहर पे जुल्म करेंगे और जो उनकी ज़ुर्रियतों औलाद पर, यहाँ तक कि शीओं पे भी जो जुल्म करेंगे उन पर भी वैल हो। यानी इस वक्त तक अगर जिन शीओं के ऊपर इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है कि वो शिया है, उनका नाम अली है, उनका नाम हुसैन है, उन सब पर रसूल अल्लाह ने उस जमाने में वैल की थी। बज़ाने मोहतरम, आज भी गुर्बत का आलम है उस घर में। बस 2 दिन बचे हैं जनाब फातिमा ज़हरा कि वह ये अय्याम खत्म हो जाएंगे। अज़ाने मोहतरम, सैयदा की सब्र की इंतहा देखिए कि पसलियां टूटी हुई हैं, लेकिन ना बच्चों को खबर है ना अली को खबर है। अजीजान, अपने बाप के ऊपर गिरिया भी नहीं कर सकती।
खुद सोचें कि अगर हमारा कोई अजीज, हमारा खुद का बाप अगर मर जाए और हमें कोई रोने ना दे। अली से कहा गया ना कि या अली, बहुत गिरिया करती है फातिमा, इनका इंतजाम कीजिए। सबको पता है कि बैतुल हुज़न बनाया, एक रिवायात में मौजूद है कि उस बैतुल हुज़न को भी इन्होंने जला दिया। अजीजान, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जनाब फातिमा तो ज़हरा और जनाब सकीना के मसाए पढ़ूं। मुख्तलिफ रिवायात में कहा जाता है कि इन दोनों शख्सियात की मुसीबत एक जैसी है। वो फातिमा की जो हुसैन की माँ है और वो सकीना की जो हुसैन की बेटी है, ये दोनों का वास्ता एक हुसैन से है। अरे सैयदा का पहलू शिकस्ता है तो उस बच्ची के कानों से खून निकलता है। अरे वहाँ फातिमा को कुनफुस ने मारा था, यहाँ सकीना को तमाचे मारता है शिमर। जनाब फातिमा एक एक दर पर गई थी, पूरे मदीने की गलियों के चक्कर लगाए थे कि हमारा हक हमें दे दो। और वो सकीना की जिसको शाम और कूफा दर बदर फिराया गया है, अजीजों दरबार में इन दोनों हस्तियों को जाना पड़ा। जनाब फातिमा भी दरबार में गई है, 18 साल की थी, ज़ईफ़ा बन के वापस आई। जनाब सकीना भी गई, वो 4 साल की मासूमा, कुछ रिवायात में है कि इतनी नहीं हो गई थी जब दरबार से आई है जनाब सकीना। अरे जनाब सकीना को अपने बाबा पे रोने ना दिया। जनाब सकीना हुसैन पे रोती थी तो तमाचे मारे जाते थे, और जनाब फातिमा को अपने बाबा के रोने के लिए घर से बाहर निकाल दिया कि सैयदा यहाँ मत रोए, शहर से बाहर चली जाए। अरे दोनों की बाबा की मजलूमियत देखी है। सैयदा को जब दरबार में बुलाया तो मेरी सैयदा को झूठी का लक़ब दिया है और सकीना को बागी कहा गया है। जनाब फातिमा से फिदक छीनी है, सकीना से वो बालियां छीनी जो हुसैन ने दी थी। अरे मेरी सकीना का कुर्ता जला दिया और मेरी फातिमा का घर जला दिया। अजीजों, ये 2 जनाजे हैं जो रात की तारीकी में उठे हैं। सैयदा को मौला अली अलैहिस्सलाम ने रात की तारीकी में दफनाया है। अरे सकीना को भी अली ने ही दफनाया है, बस फर्क ये है कि वो हुसैन का बेटा अली है। जिंदान की तारीकी में सकीना को दफनाया है। खुदाया